I hope all of you are listening me well, as you can see me as well. Let's go for the next one. Yesterday we have studied English and we have seen some of the things which were really amazing. Now, inshallah, I'm going to show you today some of the great things about our self-introduction and the other things too. We're going to have a new lecture of our self-introduction which will be including some of the best points in English. Okay? So before we go ahead, I want from each and every of your side some of the comments. And the comments should be really awesome as I am asking for what exactly. Just a minute, please. Yes, I can see some of the good comments over here. People are greeting me. That's what Walaikum Islam. Now, before we go ahead, I want to ask you. Yesterday, I taught you some things, right? कल मैंने आप लोगों को कुछ पढ़ाया था. It was what self-introduction and little bit demo about English. So now today, I'm looking for the feedback. How was the lecture yesterday? Can you please put it into the chat box? Please put it into the chat box. How was the lecture yesterday? कल का lecture कैसा था आपके लिए? आपने कुछ सीखा उसके अंदर? क्या आपने सीखने के लिए आपको कुछ मिला? Yesterday I taught you introduction and all. इसके अंदर से बहुत सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाया था. आवाज नहीं आ रही शायद इन लोगों को. आ रही है ना? Is it clear? Okay, let's go. So yes, thank you so much. तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था इंग्लिश के अंदर सेल्फ इंट्रोडक्शन, बेसिक सेल्फ इंट्रोडक्शन स्टार्ट कैसे करना है आप लोगों को और कैसे आप लोगों को सेल्फ इंट्रोडक्शन लोगों के सामने बोलना है जब whenever you are going to a party, whenever you are going to any function. Okay, let's get started with the other things as well. Inshallah, I'm going to show you today some of the great things which will help you a lot to make your self introduction more effective and efficient. Okay, let's go for the next one. And as you can see here, that today I'm going to share with you the screen. I hope you are able to see me when I'm going to write it. Okay, please put it in the chat box the moment when you're going to see the written things on the screen. Okay, so yesterday we have started with our self introduction. Okay, so yesterday we have started with our self-introduction and we have seen 8 points total with including our saying thank you. Okay, लास्ट में हम लोगों ने कल देखा था कि लास्ट में हम लोगों को थैंक यू बोलकर एंड करना था और कुछ हम लोगों ने चीजें बहुत कुछ देखा था कल, वो मैं आपके सामने वापस से एक बार रखूंगा और उसको हम लोग वापस से एक बार इंक्लूड कर सकते हैं उनको हमारे सेल्फ इंट्रोडक्शन के अंदर. Okay, so yesterday we have seen our self introduction with some of the points. Point number 1 was there. It was what? Wish. Point number 1 was there. It was wish. Second point was there, name. Correct. कल हम लोगों ने देखा था विश किस तरह करना है अकॉर्डिंग टू द टाइम. करेक्ट, कि टाइम के हिसाब से हम लोगों को विश कैसे करना है. सुबह रहेगी तो गुड मॉर्निंग, दोपहर रहेगी तो गुड आफ्टरनून, शाम रहेगी तो गुड इवनिंग. करेक्ट. नेक्स्ट, उसके बाद हम लोगों ने देखा था हमारा नाम. सो नेम शुड बी व्हाट इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम. नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. आप यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे कि इंडिया के अंदर स्पेशली के अंदर और बाकी बहुत सारी रीजन्स के अंदर भी लोगों को असल मीनिंग पता ही नहीं है. सॉरी टू से दिस. मैं क्यों इस तरह बोल रहा हूं? बिकॉज इफ यू सी दैट सम ऑफ द पीपल आर देयर, दे टेक देयर फर्स्ट नेम लेटर एंड दे टेक देयर लास्ट नेम फर्स्ट. फर्स्ट नेम को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को लास्ट नेम बोलते क्यों है? क्योंकि भाई पहला नाम पहला आना चाहिए और लास्ट नेम लास्ट में आना चाहिए. जैसे कि फॉर एग्जांपल इमरान पठान. करेक्ट. इमरान इज द फर्स्ट नेम एंड पठान इज द लास्ट नेम. हमारे यहाँ पे लोग उल्टा करते हैं, पठान इमरान बोलते हैं, जो कि गलत है. फर्स्ट नेम को फर्स्ट नेम बोलते क्यों है? अगर बोलते हैं तो उसको पहला ही बोलना चाहिए. आई गेटिंग द पॉइंट? सो नेम शुड बी इन द फॉर्म ऑफ लाइक फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम. Okay, first name and the last name. So I can say here Amansar Idrisi. Ansar is the first name and Idrisi is what? Last name. Next one should be there age. ये हम लोगों ने कल देख चुके हैं सारी चीजें. Age should be the next one. अब तक हम लोग जो age बोलते थे 20 years old, 25 years old, 16 years old. Old नहीं बोलना है. It was an old fashion. So we can say there directly I'm 20, I'm 25, I'm 30, whatever. Our age should be there. Okay. Next one, our marital status should be there. मैरिटल स्टेटस मतलब ये नहीं क्या है, आपको वहां पर बताना है आर यू मैरिड और नॉट मैरिड. चलो मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं.
a little funny as well. जैसे कि आप लोग देखते हैं कि आप स्कूल में जब जाते थे तो स्कूल में आप लोग बोलते थे टीचर्स को मिस मिस मिस, करेक्ट? आप लोग टीचर्स को कहते थे मिस, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आपने सुना होगा बचपन से लेकर अभी तक कि आप टीचर को बोलते थे मिस इसने मेरा इरेजर ले लिया, इसने मेरा स्केल ले लिया, इसने मेरा कंपास तोड़ दिया, मिस बोलते थे आप, करेक्ट? टीचर को बोलते थे आप मिस, जो कि बिल्कुल ही गलत है। वजह क्या है उसकी? उसकी वजह ये है कि मिस हम लोग किसको कहेंगे? आई एम गोइंग टू राइट ऑन द स्क्रीन, आई होप यू आर टू एबल टू सी दिस वन। नाउ एज यू कैन सी हियर, मिस जो टाइटल के बारे में बात कर रहा हूं मैं कि मिस टाइटल यूज किसके लिए होता है? वी आर गोइंग टू यूज द टाइटल मिस ओनली फॉर अनमैरिड गर्ल, सिर्फ और सिर्फ अनमैरिड गर्ल के लिए यूज करेंगे। अब अपने बेचारे जो टीचर थे वो बेचारे 40 साल के थे, उनको 40 बच्चे भी थे। अब वहां पर मसला ये है कि हम टीचर को मिस बोलेंगे, टीचर तो बेचारी खुश हो रही थी कि मुझे मिस बोल रहा है। मसला ये है कि वहां पर हम लोग मिस नहीं बोलेंगे, उनको कुछ और बोलना था, हम लोगों को कुछ और टाइटल लगाना था। सॉरी टू से दिस। सेकंड थिंग इज व्हाट देयर, मिस वी आर यूजिंग फॉर अनमैरिड गर्ल, मिस हम यूज करेंगे अनमैरिड लड़की के लिए। नेक्स्ट इज व्हाट, मिसेज। ये जो टाइटल है MRS, मिसेज जिसको पढ़ा जाएगा मिस्ट्रेस, दैट मिसेज वी आर गोइंग टू यूज फॉर मैरिड लेडी। ओके, ये हम लोग यूज करेंगे मैरिड लेडी के लिए। अब मसला ये है कि जैसे कि भी आप लोग अभी जाते हैं, जैसे कि भी आप लोग जाएंगे एयरपोर्ट पर, बैंक में, रेस्टोरेंट में, कहीं स्टेशन वगैरह पर, आपको वहां पर अगर कोई लेडी अगर दिखती है, सपोज द लेडी इज देयर एंड हर एज इज बिटवीन 25 to 30, उनकी जो एज है वो 25 से 30 के बीच में है। अब आप उनको टाइटल लगाना चाहते हैं, किसी टाइटल से बुलाना चाहते हैं, फिर उनके नाम के आगे आपको टाइटल लगाना है, तो आप उनको पूछें कि मैडम आर यू मैरिड? नहीं, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते, वरना वो खफा हो जाएंगे और हो सकता है कि बाद में फिर वो कुछ फिजिकली आपको वायलेट भी कर सकती है मैम। ऑलराइट, सो आप वहां पर पूछे कि वो लेडी को कि मैडम आपकी शादी हुई है क्या? नहीं, नहीं, ऐसा करना नहीं बिल्कुल भी, वरना कुछ और ही हो सकता है। सो बेटर देन दैट, अब यहाँ पर अगर हमको अगर पता नहीं है कि वो लेडी की शादी हुई है या नहीं हुई, तो हम वहां पर टाइटल क्या लगाएंगे? अनमैरिड के लिए लगाएंगे मिस, मैरिड के लिए लगाएंगे मिसेज, जब पता होगा। अब हमको पता ही नहीं है कि हम लोगों को पता ही नहीं है कि वो मैडम की शादी हुई है कि नहीं हुई, तो हम वहां पर टाइटल क्या लगाएंगे? वहां पर टाइटल हम लगाएंगे मिस, जो कि ये वाला है मिस। इसका साउंड आता है MIZ, मिस, 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 मिस। वी आर यूजिंग द टाइटल फॉर अनमैरिड एज वेल एज मैरिड लेडी, दोनों के लिए यूज होता है। चाहे वो मैरिड रहने दो, चाहे वो अनमैरिड रहने दो, दोनों के लिए यूज होगा। अब तक हम जो गलती करते थे वो क्या था? हम कहते थे अपने टीचर को मिस 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 मिस, जो कि गलत था। सिर्फ मिस यू वी आर गोइंग टू यूज ओनली फॉर अनमैरिड गर्ल, मिसेज वी आर गोइंग टू यूज फॉर मैरिड गर्ल, एंड मिस वी आर गोइंग टू यूज फॉर मैरिड एज वेल एज अनमैरिड गर्ल। ओके, both of them. Second thing is there, marital status, as I've told you yesterday, that you can say there I'm married or I'm not married. Point number 2. By the way, मैंने आप लोगों को अभी कुछ टाइटल के बारे में बताया है, कितने लोगों को समझ में आया? Can you please put it in the chat box? Keep on putting into the chat box. Okay? Chat box में लिख दीजिए प्लीज। नेक्स्ट वन, अब हम लोग चलते हैं हमारे सेल्फ इंट्रोडक्शन के आगे। मैरिटल स्टेटस में यू कैन से देयर आई एम मैरिड और आई एम नॉट मैरिड, वहां पर सिंगल डबल ट्रिपल कुछ बोलना नहीं है। नेक्स्ट वन, नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 इज व्हाट? यहां पर आएगा हमारा नेम, एज, मैरिटल स्टेटस। नेक्स्ट वन इज व्हाट? आवर लोकेलिटी, आप लोग कहां से हैं? तो वहां पर लोकेलिटी के अंदर हम लोगों ने देखा था कल, वी आर गोइंग टू पुट देयर सिटी एंड द कंट्री। सिटी एंड द कंट्री, दो चीज हम लोगों को वहां पर देखने के लिए मिलेगी, सिटी एंड कंट्री। आई एम इंडियन, आई एम फ्रॉम पुणे, I'm Indian, I'm from Bangalore, I'm Indian, I'm from Mumbai, I'm Indian, I'm from Kanpur, I'm Indian, I'm from Muzaffarabad. So you're going to put their country and the city. Next one. Now you're going to put the next topic, and that's what? Your parents' profession. आपके पेरेंट्स का प्रोफेशन आपको डालना है। प्रोफेशन का मतलब होता है व्यवसाय, जिसको हम लोग बोलते हैं पेशा। आपको सिर्फ आपके पेरेंट्स का प्रोफेशन लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर इज अ प्रीस्ट। प्रीस्ट का मतलब होता है मौलाना। अब जैसे मेरे अब्बू मौलाना है, तो मैं बोल सकता हूं माई फादर इज अ प्रीस्ट एंड माई मदर इज अ होम मेकर। होम मेकर और होम मेंटर। होम मेकर और होम मेंटर, जैसे मैंने आप लोगों को कल 2 वर्ड्स बताया था न्यू। ऑलराइट, सो माय फादर इज अ प्रीस्ट एंड माय मदर इज अ होम मेकर।
अ लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगाया हूँ अ। माई फादर इज अ प्रीस्ट एंड माई मदर इज अ होम मेकर, मतलब यानी मेरे अब्बू एक प्रीस्ट है। इफ यू डोंट पुट देयर अ, इट विल बिकम एब्सोल्युटली रॉन्ग, वो गलत हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा अब्बू कितने हैं अम्मी कितने हैं। सो बेटर देन दैट यू आर गोइंग टू पुट देयर ए, माई फादर इज अ प्रीस्ट एंड माई मदर इज अ होम मेंटर और होम मेकर। नेक्स्ट वन, योर प्रोफेशन। अब आपका खुद का प्रोफेशन आएगा, फॉर एग्जाम्पल आई एम का आएगा, हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल अ स्टूडेंट। अगर आप लोग स्टूडेंट है तो आप बोल सकते हैं अ स्टूडेंट, और यू कैन से अ प्रीस्ट, मतलब मैं एक मौलाना हूं, या फिर आप कह सकते हैं एन engineer, मैं एक engineer हूं, alright? So this is what exactly your self introduction, and at the end you can say engineer, okay, and at the end you can say thank you। ये हम लोगों ने कल देखा था यहां तक के, करेक्ट? यहां पर हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन ये फिनिश हुआ था। विश, नेम, एज, मैरिटल स्टेटस, लोकेलिटी, पेरेंट्स प्रोफेशन, योर प्रोफेशन, एंड एट द एंड थैंक यू। ये हमारा शॉर्ट सा सेल्फ इंट्रोडक्शन हम लोगों ने कल देखा था इंग्लिश के अंदर, करेक्ट? इसके अंदर किसी को प्रॉब्लम है कुछ? इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस, डाउट्स, प्रॉब्लम्स, यू कैन आस्क मी लेटर, ओके? सो आपके जितने भी डाउट्स हैं इंशाल्लाह वो हम क्लियर करते चलेंगे आज के इस सेशन के अंदर। आगे आगे बढ़ते हैं। सो दीज आर द 8 पॉइंट्स व्हिच वी हैव सीन yesterday, we are going to continue today inshallah. Now second thing is what, इस 8 पॉइंट को हम कट कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग लेंगे हमारा नया पॉइंट, because we are not going to finish our self introduction here. Next, इसके बाद में हमारा पॉइंट आता है फेवरेट प्लेस, और सॉरी फेवरेट कलर। सेकेंड थिंग, अब यहाँ पर फेवरेट कलर के बारे में आपको बोलना है। आप फेवरेट कलर के बारे में कैसे बोलेंगे? माई फेवरेट कलर इज रेड, माई फेवरेट कलर इज ग्रीन, माई फेवरेट कलर इज येलो, माई फेवरेट कलर इज ब्लू। रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ये बहुत पुराने वर्ड्स हो गए और एकदम लोकल वर्ड्स हैं। कोई भी बोलता है, कोई भी आता है, कोई भी बोलता है, कोई भी सुनता है। अब यहाँ पर लोग बोर हो चुके हैं। बोर का मतलब मेरा ये है कि रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो ये नॉर्मल वर्ड्स हैं, इसकी जगह पे आप कुछ और नया बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शेयर विथ यू। अब आप रेड की जगह पे कुछ बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेड की जगह पर आप लोग बोल सकते हैं स्कारलेट। मैं ये चाहता हूं कि आप वो लेवल की इंग्लिश बोले जो बेचारे टीचर्स को भी पता नहीं है। नाउ स्कारलेट इज व्हाट? रेड। रेड की तरह थोड़ा सा डार्क कलर होता है, दैट्स व्हाट स्कारलेट। नेक्स्ट वन, इंस्टेड ऑफ सेइंग रेड यू कैन से रोज, मतलब यानी रेड की जगह पर आप क्या बोल सकते हैं? स्कारलेट। रेड की जगह पे आप बोल सकते हैं रोज। माय फेवरेट कलर इज रोज, माय फेवरेट कलर इज स्कारलेट। नेक्स्ट वन, ग्रीन। अब ग्रीन की जगह पे आप लोग कुछ और भी वर्ड्स दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई फेवरेट कलर इज टर्कोइज। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको सुनने के बाद सामने वाला भी चक्कर खा जाएगा, बोलेगा ओह माय गॉड, समवन इज स्पीकिंग रियली अमेजिंग इंग्लिश। ये वर्ड्स हो सकता है शायद आपके लिए न्यू वर्ड्स होंगे, इसी तरह लोगों के लिए भी न्यू वर्ड्स हो सकते हैं। माई फेवरेट कलर इज एमरल्ड। एमरल्ड ग्रीन टाइप का ही कलर होता है, टर्कोइज भी ग्रीन टाइप का कलर होता है। आप गूगल पर जब उसको टाइप करेंगे तो आपको कलर्स मिल जाएंगे। So instead of saying green, you can say my favorite color is turquoise, my favorite color is emerald, my favorite color is aquamarine. Aquamarine भी क्या होता है? ग्रीन टाइप का ही कलर होता है। नेक्स्ट, instead of saying yellow, येलो की जगह पे आप क्या बोल सकते हैं? My favorite color is lime, और my favorite color is olive. Olive का मतलब होता है जैतून, ओके? Instead of saying yellow, you can say olive. Olive is my favorite. मतलब बोलने का एक तरीका चेंज हो गया है। दुनिया बोल रही है माय फेवरेट कलर इज येलो, 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 आप जाकर क्या कहेंगे? ऑलिव। मतलब आपका इंग्लिश एक यूनिक बन जाएगा। सेकंड थिंग, नाउ इंस्टेड ऑफ सेइंग ब्लू, दुनिया कह रही है ब्लू, 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 आप ब्लू की जगह पे, जैसे कि मैंने शर्ट पहना हुआ है अभी जो कलर का, लोग इसको कहते हैं नेवी ब्लू। एक्चुअली ऐसा टाइप का कोई वर्ड है ही नहीं। आप बहुत सारी चीजें ऐसी इंग्लिश के अंदर जो आप जाकर लोगों से सुनते हैं, ऐसा इंग्लिश में है ही नहीं। बल्कि सॉरी टू से दिस, इंस्टेड ऑफ सेइंग नेवी ब्लू, अगर आप जाकर इंग्लैंड में बोलेंगे नेवी ब्लू तो बोलेगा आपको आर्मी ब्लू भी होता है क्या कोई? नो। सो नेवी ब्लू, आर्मी ब्लू ऐसा कुछ होता है नहीं। दैट्स व्हाट इंडिगो। इंस्टेड ऑफ सेइंग नेवी ब्लू यू कैन से इंडिगो। तो ब्लू अगर आपका फेवरेट है तो आप उसकी जगह पे बोल सकते हैं माय फेवरेट कलर इज इंडिगो। तो इंडिगो एक नया वर्ड आपको मिला जिसकी वजह से आपका कॉन्वर्सेशन एक बेस्ट लेवल पर पहुंच जाएगा, एंड द पीपल वुड बी लिसनिंग टू यू व्हिच आर रियली अमेजिंग, ओके? दैट्स व्हाट। नेक्स्ट वन इज व्हाट? ब्लू की जगह पे आप इंडिगो बोल सकते हैं। फेवरेट कलर की जगह पे आप लोग ये सब चीजें डाल सकते हैं। मैं आपको आगे इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट्स वगैरह दूंगा। सो यू कैन से माय फेवरेट कलर इज इंडिगो। नेक्स्ट वन, next point is coming and that's what my favorite sport, okay? favorite sport की जगह पर आप लोग बोल सकते हैं my favorite sport is football, my favorite sport is cricket,
etc. Okay, so whatever your favorite sport is there, you can speak about your favorite sport. Okay, next one is your interest. अब जैसे कि आपका आएगा इंटरेस्ट, नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका इंटरेस्ट का, आपको किस चीज के अंदर इंटरेस्ट है. ओके, अब जैसे कि हम लोग बोलते हैं आई एम इंटरेस्टेड इन, मतलब मैं इंटरेस्टेड हूं, आई एम इंटरेस्टेड इन गार्डनिंग. गार्डनिंग मतलब नहीं माली काम होता है उसको बोलेंगे. कुछ लोगों को बहुत शौक होता है गार्डनिंग वगैरह करने का घर पर, दे कैन से आई एम इंटरेस्टेड इन गार्डनिंग. और आई एम इंटरेस्टेड इन ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है, सफर करने में. आई एम इंटरेस्टेड इन टीचिंग, मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट है. नेक्स्ट, आई एम इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर्स, मुझे कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है. आई एम इंटरेस्टेड इन कैलीग्राफी. कैलीग्राफी क्या होता है? कुछ लोगों को अलग अलग तरीके की फोन के अंदर लिखना कुछ लोगों को पसंद होता है, हम लोग उसको कहेंगे कैलीग्राफी. सो आई एम इंटरेस्टेड इन कैलीग्राफी, आई एम इंटरेस्टेड इन फुटबॉल, आई एम इंटरेस्टेड इन गार्डनिंग, आई एम इंटरेस्टेड इन टीचिंग, आई एम इंटरेस्टेड इन प्लेइंग. आप वहां पर आपके इंटरेस्ट के हिसाब से एक वर्ड लगा सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज कमिंग, पॉइंट नंबर 11, दैट्स व्हाट बेस्ट ऑथर. ऑथर का मतलब होता है मुसन्निफ, लेखक, राइटर. ओके, माय बेस्ट ऑथर. अब आपका कोई अगर आपको पढ़ने लिखने का ज्यादा शौक है तो आपका एक आधा कोई बेस्ट ऑथर हो सकता है. सो यू कैन से देयर अल्लामा इकबाल इज माय बेस्ट ऑथर. मेरे फेवरेट ऑथर हैं, मेरे बेस्ट ऑथर है अल्लामा इकबाल. और आप जो भी ऑथर को पसंद करते हैं आप उनका नाम लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मार्क ट्वेन इज माई बेस्ट. मार्क ट्वेन मेरे फेवरेट ऑथर है. ये सुनो, मार्क ट्वेन इज माय फेवरेट ऑथर, अल्लामा इकबाल इज माय फेवरेट ऑथर, अल्लामा इकबाल इज माय फेवरेट पोएट. आप लोग लिख सकते हैं. सो बेस्ट ऑथर और बेस्ट पोएट के लिए आप लोग यहाँ पर एक सेंटेंस दे सकते हैं. विलियम शेक्सपियर इज माय बेस्ट पोएट. गेटिंग इट? द क्रिटिक्स. स्लोली जाना है, थोड़ा फास्ट हो रहा है. नेक्स्ट वन, अब जैसे कि हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट आएगा यहाँ पर, बेस्ट ऑथर के बाद में आएगा हमारा बेस्ट पर्सनालिटी. अब बेस्ट पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है? पसंदीदा शख्सियत. बेस्ट पर्सनालिटी मतलब यानी पसंदीदा शख्सियत, हमारी पसंदीदा शख्सियत. जैसे कि भी हम लोग कहते हैं मेरी पसंदीदा शख्सियत है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी पसंदीदा शख्सियत है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मेरी पसंदीदा शख्सियत है मेरे अब्बू, मेरी अम्मी. तो पसंदीदा शख्सियत को हम इंग्लिश में बोलेंगे बेस्ट पर्सनालिटी. ओके, जिसको आप ज्यादा पसंद करते हैं. देयर इज अ वर्ड फॉर बेस्ट पर्सनालिटी वी हैव एंड दैट्स व्हाट अडोर. अडोर का मतलब क्या होता है? लव प्लस रिस्पेक्ट. आप किसी इंसान को बहुत ज्यादा चाहते हैं, उनकी इज्जत भी करते हैं, उस इंसान के हम लोग यूज कर सकते हैं एक वर्ड अडोर. आई अडोर मतलब यानी मैं उनको पसंद करता हूं, मैं उनको चाहता हूं, मतलब मैं उनको बहुत ज्यादा मानता हूं. सो यू कैन से आई अडोर Prophet Muhammad, peace be upon him. That's what peace be upon him. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंग्लिश में क्या कहेंगे? Peace be upon him. Okay? So I adore Prophet Muhammad, peace be upon him. मतलब मैं उनको अडोर करता हूँ, मैं उनको मानता हूँ, वो मेरी प्यारी शख्सियत है, मेरी पसंदीदा शख्सियत है. Getting it? Or you can put the other names as well. For example, I adore my father, I adore my brother, I adore my teacher, I adore Abraham Lincoln, I adore Hazrat Umar Razillahu Ta'ala. So we can just put there the names of the people whom we adore. Okay. Next one. Point number 13 is there in our self introduction. Best personality के बाद में आएगा हमारा ideal person. What do you mean by ideal person? Ideal person का मतलब होता है role model. Okay. Role model. What do you mean by role model? जिसकी तरह आप लोगों को बनना है. अभी आपकी हर एक की लाइफ के अंदर क्या होगा कि कोई ना कोई इंसान ऐसा होगा जिसकी तरह आप लोगों को बनना है. ये सर जिसकी तरह आप लोगों को बनना है, आप उनको क्या कहेंगे? अपना रोल मॉडल. गेटिंग इट? सो माय आइडियल पर्सन, अब मेरा मतलब है नहीं मेरे रोल मॉडल कौन है. सो फॉर एग्जाम्पल यू कैन पुट देयर माय आइडियल इज, माय आइडियल इज माय फादर. मुझे मेरे अब्बू की तरह बनना है. सो वी कैन से माय आइडियल इज माय फादर. और यू कैन पुट द अदर नेम्स एज वेल. फॉर एग्जांपल माय आइडियल इज, आप जिसका भी नाम लेना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल माय आइडियल इज हजरत अबू बकर. ओके,
So this is what exactly you can put there. Some of the words, some of the names like this: Hazrat Abu Bakr. Okay. So this is what exactly your self introduction is. आप यहाँ पर बोल सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 14. अब जिस तरह मैंने स्टार्ट किया था आपको एक बार मैं बता दूंगा, देन वी कैन गो अहेड. पॉइंट नंबर 14 इज व्हाट योर एम्बिशन. एम्बिशन का मतलब क्या होता है? मकसद. आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका मकसद क्या है. सो एम्बिशन आप लोग का, जैसे मुझे ये बनना है, सो यू कैन से देयर आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर. अब मुझे डॉक्टर बनना है तो मैं बोल सकता हूँ आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, और आई वांट टू बिकम अ टीचर, आई वांट टू बिकम अ लॉयर, और आई वांट टू बिकम अ प्रीस्ट. ओके. तो मतलब नहीं, हम लोग वहां पर हमारा जो भी मकसद है, जो हम लोगों को बनना है, हम लोग वो बता सकते हैं इन एम्बिशन. ओके. सो दिस इज व्हाट द एंड ऑफ आवर सेल्फ इंट्रोडक्शन. पॉइंट नंबर 15 एंड द लास्ट वन एट द एंड आप लोगों को बोलना है डायरेक्टली वहां पर थैंक यू, और यहाँ पर आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन फिनिश हो जाएगा. अब मैं यहाँ पे आप लोगों को फिर से एक बार सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या चीजें बोलना है, हम लोग वहां पर एक बार से फिर से स्टार्ट कर लेते हैं स्लोली. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद पॉइंट नंबर 1, दैट्स व्हाट विश. यहाँ पे हम लोगों को पहले विश करना है. विश कैसे करेंगे हम लोग? अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कि सुबह हो रही है तो वी कैन से गुड मॉर्निंग. करेक्ट. गुड मॉर्निंग सर. अगर कोई लड़के से आप बात करें, किसी आदमी से अगर आप बात करें तो आप लोग क्या कहेंगे? गुड मॉर्निंग सर. और अगर कोई लेडी अगर है तो हम लोग क्या कहेंगे? गुड मॉर्निंग मैडम. लोग बोलते हैं मैम. मैम हम सिर्फ किसको कहेंगे? जिनको हम जानते हैं, जिनको हम जानते हैं. फॉर एग्जाम्पल आवर हस्बैंड, सॉरी आवर वाइफ, आवर सिस्टर, आवर मदर, आवर नेबर. जिनको हम पहचानते हैं, जिनको हम जानते हैं, उनको हम मैम कह सकते हैं, वरना मैम नहीं कहेंगे. वी आर गोइंग टू से देयर madam. Okay, so good morning sir or good morning madam we are going to say according to the situation wish. Point number 1, self introduction में हमारा सबसे पहले क्या आएगा? wish आएगा. next one, next will be what? name. अब वहां पर आएगा हमारा नाम. like for example first name and the last name. so मैं बोल सकता हूँ मतलब मैं, मेरा नाम है अंसार इदरीसी. टाइप नहीं होता है वो, कोई मसला नहीं. ओके, अंसार इदरीसी. ओके. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आएगा आपका एज. अब आपकी एज आपको बताना है तो आप लोग किस तरह बताएंगे एज आपकी? जैसे मैंने आप लोगों को बताया था पहले, I'm 20, I'm 25, I'm 30, etc. For example, I'm 25. नेक्स्ट वन, मैरिटल स्टेटस. अब आपको बताना है आपका मैरिटल स्टेटस, कि आप मैरिड हो या अनमैरिड हो. करेक्ट. सो यू कैन से देयर नॉट मैरिड और मैरिड. ओके, मैरिड और नॉट मैरिड. नेक्स्ट वन, लोकेलिटी. आप कहां से हो, तो आपको आपकी लोकेलिटी बताना है. यस और नो. सो फॉर एग्जाम्पल यू कैन टॉक अबाउट योर कंट्री एंड योर सिटी. यू कैन से Indian, from Pune. Okay, I'm Indian, I'm from Pune. Next one is what your parents' profession. अब आपका यहाँ पर पेरेंट्स का प्रोफेशन आएगा. ओके, आपके पेरेंट्स का मतलब आपके अब्बू अम्मी का प्रोफेशन आएगा यहाँ पर. My father is a priest and my mother is a homemaker. मतलब मेरे अब्बू मौलाना है और my mother is a homemaker. Alright, next one. अब आएगा आपका यहाँ पर खुद का प्रोफेशन. ओके, सॉरी, अब यहाँ पर आएगा आपका खुद का प्रोफेशन. फॉर एग्जाम्पल योर ओन प्रोफेशन, योर ओन प्रोफेशन. ओके, फॉर एग्जाम्पल I'm a student और I'm an engineer. मतलब मैं क्या हूं? मैं एक स्टूडेंट हूं या तो फिर मैं एक इंजीनियर हूं. आप लोग आपके प्रोफेशन के बारे में बता सकते हैं. नेक्स्ट, योर फेवरेट कलर. आपका फेवरेट कलर कौन सा है? आपका फेवरेट कलर के बारे में आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल माई फेवरेट कलर इज इंडिगो. सो माई फेवरेट कलर इज इंडिगो. ये आपका सेंटेंस इस तरह से आ सकता है. और माई फेवरेट कलर इज एमरल्ड, माई फेवरेट कलर इज टर्कॉइस, माई फेवरेट कलर इज
लाइम, ऑलिव, उस तरह आप बोल सकते हैं. नेक्स्ट, फेवरेट स्पोर्ट, यू कैन से आई लव फुटबॉल. ये एक सिर्फ सेंटेंस बनाने का एक तरीका है. आई लव फुटबॉल मतलब मुझे फुटबॉल बहुत ज्यादा पसंद है. और आई हैव पैशन फॉर फुटबॉल मतलब मुझे फुटबॉल बहुत ज्यादा पसंद है. आप उसके बारे में बता सकते हैं. आई लव क्रिकेट, आई एम इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, और माई फेवरेट स्पोर्ट इज क्रिकेट. नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट. अब आपका आएगा यहाँ पर आपका इंटरेस्ट, के आपको किस चीज में इंटरेस्ट है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम इंटरेस्टेड इन गार्डनिंग, आई एम इंटरेस्टेड इन ट्रैवलिंग, आई एम इंटरेस्टेड इन टीचिंग, आई एम इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर्स, आई एम इंटरेस्टेड इन कैलीग्राफी. सो आपको आपके इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पर बात करनी है. इसके बाद में वैसे एक और पॉइंट है जो कि मैं आपको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं हम लोग, अगर आपको और भी बड़ा आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन देना हो तो. फॉर एग्जाम्पल, आपका आएगा यहाँ पर लाइक्स. लाइक मतलब मेरी जो चीजें आपको पसंद है आप उसके बारे में बोल सकते हैं. अब आपको जो जो चीजें पसंद है, नॉर्मली अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हो तो वहां पे लोग आपको पूछेंगे आपको क्या क्या चीजें पसंद है, आप क्या पसंद चीजों को पसंद करते हैं. सो यू कैन से देयर आई लाइक मतलब मैं पसंद करता हूं. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक कुकिंग, आई लाइक कैलीग्राफी एंड, और क्या पसंद है, आई लाइक कैलीग्राफी. ओके, आई लाइक कुकिंग, आई लाइक कैलीग्राफी एंड आई लाइक ट्रैवलिंग. ये आप लोग बोल सकते हैं. लाइक्स मतलब मेरी जो चीजें आपको पसंद है. अब इसके अंदर एक और चीज है, लाइक मतलब मेरी पसंद करना. लाइक कोई चीज को पसंद करना, कोई चीज पसंद होना, हम लोग वहां पर बोलेंगे आई लाइक. अब लाइक की जगह पे आप लोग कुछ और भी वर्ड्स दे सकते हैं. अब लाइक तो दुनिया बोल रही है, करेक्ट, सभी लोग बोल रहे हैं आई लाइक दिस, आई लाइक दैट, आई लाइक दिस, आई लाइक दैट, आई लाइक गार्डनिंग, आई लाइक कुकिंग, आई लाइक ट्रैवलिंग, आई लाइक कैलीग्राफी, आई लाइक एंटिक्विटीज, आई लाइक कंप्यूटर्स. लाइक वर्ड जो है नॉर्मल वर्ड है. लाइक की जगह पे आप लोग कुछ और भी वर्ड यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई लव, ये भी एक नॉर्मल वर्ड है. उसकी जगह पे आप क्या यूज कर सकते हैं, और आई एम fond of, I am fond of मतलब मैं इसका फैन हूं. किस चीज का? फॉर एग्जाम्पल, आई एम fond of riding, आई एम fond of gardening, आई एम fond of teaching, और you can say there I'm crazy about मतलब मैं काफी दीवाना हूं, मैं मतलब काफी पागल हूं उस चीज के लिए. सच का पागल नहीं, सिर्फ बोलने का एक तरीका है. हम बोलते हैं ना, I'm crazy about computer games, मुझे कंप्यूटर गेम्स बहुत ज्यादा पसंद है. I'm crazy about writing, I'm crazy about calligraphy, I'm crazy about teaching. सो क्रेजी अबाउट मतलब मैं उसके बारे में काफी दीवाना हूं, मैं मतलब उसके बारे में काफी पागल हूं, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वो चीज. और आई हैव पैशन फॉर मतलब मुझे इस चीज का शौक है. पैशन का मतलब होता है शौक. आई हैव पैशन फॉर राइडिंग, आई हैव पैशन फॉर ट्रैवलिंग, आई हैव पैशन फॉर न्यूज, आई हैव पैशन. जनरली हम लोग ऐसा कहते तो नहीं, आई हैव पैशन फॉर न्यूज, बट स्टिल अ सेंटेंस इज देयर. आई हैव पैशन फॉर कुकिंग, आई हैव पैशन फॉर टीचिंग, मेरा शौक है पढ़ाना, मेरा शौक है खाना बनाना वगैरह. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग लाइक, यू कैन से डायरेक्टली आई हैव पैशन फॉर कुकिंग, कैलीग्राफी एंड ट्रैवलिंग. तो सुनने में भी सेंटेंस आपका काफी हेवी लगेगा और ऐसे लगेगा कि भाई कोई प्रोफेशनल मतलब एक एक्सपर्ट बात कर रहा है इंग्लिश में. ओके, अच्छे वोकैबुलरी के साथ में. नेक्स्ट, नंबर 12 पॉइंट इज देयर डिसलाइक. डिसलाइक का मतलब होता है नापसंद करना, कोई चीज को नापसंद करना. हम उसको क्या कहेंगे? डिसलाइक. आई डिसलाइक मतलब मुझे ये चीज पसंद नहीं है. तो आप जैसे कि बोल सकते हैं आई डिसलाइक, सॉरी, आप बोल सकते हैं आई डिसलाइक स्मोकिंग मतलब मुझे सिगरेट पीना पसंद नहीं है. और आई डिसलाइक ड्रिंकिंग, और आई डिसलाइक हिपोक्रेसी. हिपोक्रेसी का मतलब क्या होता है? दोगलापन, मुनाफिकत. और आई डिसलाइक रेसिज्म. व्हाट मीन बाय रेसिज्म? जात पात करना, ऊंच नीच करना. सो अब डिसलाइक के लिए भी कुछ और वर्ड्स हैं. अब तक हम लोग क्या कहते थे? आई डिसलाइक स्मोकिंग, आई डिसलाइक टेररिज्म, आई डिसलाइक ड्रिंकिंग. तो डिसलाइक की जगह पे भी हमारे पास में कुछ और नए वर्ड्स हैं. डिसलाइक तो एक कॉमन वर्ड है, उसकी जगह पे आप बोल सकते हैं आई हेट. हेट काफी नेगेटिव वर्ड है, तो हेट ना बोले तो बेहतर है. हेट की जगह पे आप लोग कुछ और भी बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब हम लोग देखेंगे कुछ नए वर्ड्स जो इंशाल्लाह आपको काफी बूस्ट अप करेंगे, जिसकी वजह से आपका कॉन्वर्सेशन, आपका कम्युनिकेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाएगा इंशाल्लाह. ओके, सो आई डिसलाइक मतलब मुझे पसंद नहीं है. सो यू कैन से देयर आई लोथ. लोथ का मतलब क्या होता है? मतलब मुझे नफरत है, मुझे पसंद नहीं है. आई डिसलाइक
फॉर एग्जाम्पल आई डिसलाइक स्मोकिंग, उसकी जगह पे आप बोल सकते हैं आई लोथ स्मोकिंग, आई लोथ ड्रिंकिंग, आई लोथ रेसिज्म, आई लोथ हिपोक्रेसी, आई लोथ इलिटरेसी. सो लोथ का मतलब होता है नापसंद करना. नेक्स्ट, आई अबहॉर. आई एम श्योर आप लोग ये सब चीजें पहली बार सुन रहे होंगे ये वर्ड्स. सो ऐसे वर्ड्स आप लोग जब यूज करेंगे तो सामने वाले को समझ में आएगा कि आप किस लेवल की इंग्लिश बात करते हैं. ओके. सेकेंड थिंग, आई अबहॉर मतलब इन्हें मुझे सख्त नापसंद है. और आई डिटेस्ट, डिटेस्ट का भी मतलब वही होता है मुझे पसंद नहीं है. आई डिटेस्ट इलिटरेसी, आई अबहॉर इलिटरेसी, आई डिटेस्ट टेररिज्म, आई अबहॉर टेररिज्म, आई लोथ हिपोक्रेसी एटसेट्रा. सो अब जिस तरीके से मैंने सेंटेंस यहां पर बनाकर आपको दिया है डिसलाइक पर, आई डिसलाइक स्मोकिंग, आप उसकी जगह पर डिसलाइक की जगह पे आप लोग वहां पर बोल सकते हैं आई लोथ स्मोकिंग, आई लोथ ड्रिंकिंग, आई लोथ हिपोक्रेसी, आई लोथ रेसिज्म. ओके. सो आई लोथ स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, हिपोक्रेसी एंड रेसिज्म. आप इस तरीके से वहां पर सेंटेंस को बनाकर बोल सकते हो. ओके. नेक्स्ट वन इज व्हाट? बेस्ट ऑथर, बेस्ट पोएट. आपके बेस्ट ऑथर, बेस्ट पोएट, आपको आपका जो फेवरेट ऑथर है, राइटर है, मुसन्निफ है, आपका जो फेवरेट कवि है, आपका फेवरेट अगर कोई शायर है आप उसका नाम लिख सकते हैं. अल्लामा इकबाल इज माय फेवरेट, मार्क ट्वेन इज माय बेस्ट ऑथर, मार्क ट्वेन इज माय फेवरेट. आप लोग इस तरीके से वहां पर सेंटेंस बना सकते हैं जो भी आपका फेवरेट ऑथर या पोएट रहेगा उसका नाम लगाकर. ओके. नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर 14 इज देयर बेस्ट पर्सनालिटी. बेस्ट पर्सनालिटी जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, बेस्ट पर्सनालिटी मीन्स व्हाट? मेरी पसंदीदा शख्सियत. सो यू कैन से देयर अ वर्ड आई अडोर, मतलब मैं उनको मानता हूं. अडोर का मतलब होता है मानना. सो आई अडोर प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम. आई अडोर माय फादर, आई अडोर माय अंकल, आई अडोर माय टीचर. सो आप जिसको भी मानते हैं, बहुत ज्यादा मानते हैं, आप उनकी बात मानते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं वगैरह, उसको हम कहेंगे माय बेस्ट पर्सनालिटी. मतलब आप उनको बहुत ज्यादा मानते हैं, उनसे सजेशंस वगैरह लेते हैं. सो दैट्स व्हाट you like that personality. So you can say there I adore Prophet Muhammad, peace be upon him. I adore Hazrat Abu Bakr Siddiq. Correct. So you can put up there some of the names according to your acknowledgement. Next one is what? My ideal person. मतलब इन्हीं मेरे रोल मॉडल कौन है? रोल मॉडल मतलब इन्हीं जिसकी तरह आप लोगों को बनना है. अब हर एक की लाइफ में एक ऐसा इंसान होता है जिसकी तरह उनको बनना होता है. सो यू कैन से देयर आई अडोर माय फादर, मुझे मेरे अब्बू की तरह बनना है. सो आई अडोर माय फादर, I adore my uncle. अगर आप उनका नाम लेना चाहते हैं so you can put up their names as well. For example, I adore Muhammad sallallahu alaihi wasallam. मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नक्शे कदम पर चलना है, मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ. मतलब बन तो नहीं सकते उनकी तरह, पर हम लोग सिर्फ एक आइडियल के तौर पर हमको उनको बोलते हैं हमारे इस्लाम के अंदर. नेक्स्ट वन, यू कैन से my I adore my uncle, I adore my teacher. अगर आपके कोई टीचर वगैरह है, अंकल है, आप उनका नाम भी लिख सकते हैं वहां पर डायरेक्टली. ओके. I adore Abraham Lincoln, I adore my father, I adore my uncle, I adore my teacher. अब कोई टीचर है उनका नाम आप वहां पर लिख सकते हो. ओके. नेक्स्ट वन, अब आएगा हमारा my ideal के बाद में लास्ट पॉइंट, एम्बिशन. एम्बिशन का मतलब होता है हमारा मकसद. क्या हमारा मकसद क्या है? सो आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ. I want to become a teacher, I want to become a professor, I want to become a lawyer, I want to become a priest, etc. ओके. मतलब इन्हें मैं ये बनना चाहता हूं. आप लोग वहां पर आपका एम्बिशन, आपका ऑब्जेक्टिव बता सकते हैं. एंड एट द एंड यू कैन से थैंक यू टू एंड योर सेल्फ इंट्रोडक्शन. और लास्ट में आप लोग क्या कहेंगे? सिर्फ थैंक यू कहकर अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन को एंड कर देंगे. तो यहाँ पर टोटल 17 पॉइंट्स थे, एक्चुअली 16 पॉइंट्स है टोटल यहाँ पर, जो आप लोग आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन में दे सकते हो. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, विश, नेम, एज, मैरिटल स्टेटस, लोकेलिटी, पेरेंट्स प्रोफेशन, योर प्रोफेशन, फेवरेट कलर, फेवरेट स्पोर्ट, इंटरेस्ट, लाइक्स, डिसलाइक्स. नेक्स्ट, बेस्ट ऑथर, बेस्ट पोएट, बेस्ट पर्सनालिटी, आइडियल पर्सन, एम्बिशन और एट द एंड थैंक यू. इस तरीके से आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन एक फुल फील जबरदस्त वाला तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह. गेटिंग इट? सो इस तरीके से सेल्फ इंट्रोडक्शन जब आप लोग कहीं पर कोई फंक्शन में देंगे तो वहां पे लोग आपसे इंप्रेस्ड हो जाएंगे. ओ माय गॉड, समवन इज स्पीकिंग सच ग्रेट इंग्लिश दैट ही इज गिविंग ऑल साइड ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके. पॉइंट नंबर 1, जिस तरीके से मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया, सो आप उस तरीके से अंदर आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं. पूरे टोटल 17 और 18 पॉइंट्स. ओके. फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मैं अब आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूं स्लोली,
आपको सिर्फ ध्यान देना है कि आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन, अब तक क्या करते थे, आप सोचते थे माय नेम इज सॉरी आई एम अंसार इदरीसी, आई एम 25, आई एम नॉट मैरिड, माय आइडल इज, तो आप सोचते थे वहां किसका नाम लूं। सोचना नहीं है, जब आपको आपके खुद के बारे में बोलना है तो आप सोचेंगे थोड़ी वहां पर, आपको तो पता होना चाहिए। सेकंड थिंग, झूठ बात कभी करना नहीं है, कभी करना नहीं झूठ बात, भले से आप कहीं पर भी हो, अपने आप से भी मत कीजिए। मैं आपके साथ में एक छोटा सा स्टोरी शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कुछ लोग यहाँ पर हैं माशाल्लाह। तो एक छोटी सी स्टोरी है, आप चैट बॉक्स में लिखना बंद कीजिए प्लीज। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता रहा हूं, तो शायद आप लोगों को कुछ सीखने मिलेगा, आप बाकी लोगों तक भी ये पैगाम पहुंचा सकते हैं। वंस व्हाट हैपेंड, देयर वर 4 फ्रेंड्स, 4 दोस्त थे एक मर्तबा, एंड दे वर वेरी रेकलेस, काफी बेढंगे टाइप के थे। One day what happened, they went for a party at night. Full night they were just clubbing, dancing, drinking and enjoying. एक दिन रात को वो अपने कॉलेज से, मतलब हॉस्टल में रहते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, रात को गाड़ी लेकर वो चले गए पार्टी करने के लिए। As they went for a party, whole night they were dancing and enjoying. पूरी रात वो नाचते गाते खाते पीते रहे। सुबह में फजर के वक्त में एक की आंख खुली और वो कहने लगा आज तो हमारा एग्जाम है, टुडे वी हैव द एग्जाम। अब वो घबरा गया, आज हमारा एग्जाम है, करना तो करना क्या है। तो उसमें से उन्होंने सोचा चलो पहले हॉस्टल चलते फिर देखते हैं। हॉस्टल पहुंचते पहुंचते हो गया वक्त एग्जाम का। अब उन्होंने सोचा अब करना तो करना क्या है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। सो एट दैट टाइम वन ऑफ देम ही स्टार्टेड यूजिंग हिज ब्रेन। उसमें से एक जो था उसने अपना दिमाग चलाना स्टार्ट किया और वो कहने लगा कोई मसला नहीं है, हम जाते हैं प्रिंसिपल के पास में और कुछ बहाना बना देंगे और इंशाल्लाह हम लोगों को एग्जाम की मोहलत मिल जाएगी। They went to the principal and they said that, sir, yesterday, last night, we went to the hospital to see our grandmother. She was severely ill and we went to the hospital, and while coming back from the hospital, our car's tire got flat. And due to that, we got late to the college and we haven't studied even a single word for the exam. उन लोगों ने क्या कहा कि हम लोग कल रात, इनकी अम्मी जो थे, दादी माँ, इनको हम देखने के लिए गए थे हॉस्पिटल, और आते वक्त में हमारे साथ में हादसा ऐसा हुआ कि हमारे कार का टायर पंक्चर हो गया। टायर पंक्चर होने की वजह से हम लोग काफी लेट आए कॉलेज, और लेट आने की वजह से हम लोगों ने स्टडी नहीं किया। अब वो तो भाई प्रिंसिपल थे, आपने सुना होगा हर एक इंसान का कोई ना कोई बाप होता ही है, हर कलाकार का शेर का सवा शेर होता है। प्रिंसिपल साहब समझ गए कि बच्चे झूठ बात कर रहे हैं, उन्होंने फिर भी कुछ नहीं कहा। He said, okay, no problem at all. I'm giving you 3-day holiday. Study and come back for the exam. मैं आपको 3 दिन की छुट्टी देता हूं, स्टडी करके आप एग्जाम के लिए आ जाइएगा। After 3 days, all the 4 boys they studied together and they came for the exam. अब वो 4 दिन के बाद में एग्जाम के लिए आए, 3 दिन के बाद में एग्जाम के लिए आए, सॉरी, चारों भी लड़के प्रिंसिपल साहब के पास में आए। प्रिंसिपल साहब ने क्या किया, He made them to sit in different blocks. उन्होंने उनको अलग अलग क्लासेस में बिठा दिया। वो फिर भी खुश थे, क्यों, क्योंकि 3 दिन से पढ़ाई कर रहे थे ना, आता है अपने को तो सब। अब उन्होंने क्या किया, जब वो बैठ गए तो वहां पे प्रिंसिपल साहब ने उनको सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस दिए एग्जाम में। 100 मार्क्स का एग्जाम था, उसके अंदर सिर्फ 2 क्वेश्चंस दिए। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर 1 मार्क, 1 मार्क के लिए पहला क्वेश्चन था राइट योर फुल नेम, एंड सेकेंड क्वेश्चन वॉज देयर फॉर 99 मार्क्स, Which tire got flat? कौन सा टायर पंक्चर हुआ था कल रात, मतलब उस दिन आपका एक्सीडेंट में। अब वहां पे तो किसी ने लिखा राइट टायर पंक्चर हुआ था, किसी ने लिखा लेफ्ट टायर पंक्चर हुआ था, किसी ने लिखा पीछे का, और किसी ने लिखा आगे का हुआ था। अब चारों के चारों वहां फंस गए, क्यों, झूठ बोलने की वजह से। सो आई ऑलवेज टेल द स्टूडेंट्स दैट नेवर एवर लाई। अब वहां पे फंस गए ना चारों भी, अब वहां पे चीट थोड़ी कर सकते, दोस्त को थोड़ी फोन करके पूछे आपने कौन सा लिखा, मैं कौन सा लिखूंगा, ना इशारा कर सकते हैं ना फोन कर सकते हैं, क्यों भाई, क्योंकि फंस गए। सो नेवर एवर लाई एनीवेयर। उसी तरीके से इंटरव्यू वगैरह में भी अगर आप लोग कहीं पर जा रहे हैं, अगर आपको पसंद नहीं है गार्डनिंग तो जबरदस्ती मत बोलिए प्लीज, जबरदस्ती मत बोलिए। कुछ लोग होते हैं जाकर वहां पर बोल देते हैं आई एम इंटरेस्टेड इन गार्डनिंग। अगर आपको सामने वाले इंटरव्यूअर ने अगर आपको पूछ लिया गुलाब के पेड़ के लिए कौन सी मिट्टी लगती है, तो आप जवाब क्या देंगे वहां पर। अब आपको तो गार्डनिंग पसंद है ही नहीं, तो आप जवाब भी क्या देंगे वहां पर, तो आप वहां पर फंस जाएंगे अगर आपको पसंद नहीं है तो। नाइस कमेंट्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। तो आज आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सीखने मिला होगा यहाँ पर। मैं उसी तरीके से आपको बता रहा हूँ कि आगे आपको किस तरीके से जाना है। ऑलराइट, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। सो कीप ऑन sharing with your friends as well these stories and all, it will help us a lot
to learn something. Let's go for the next. जिस तरीके से मैंने आप लोगों को सेल्फ इंट्रोडक्शन बताया हूं, आपको उस तरीके से देना है आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन 1 मिनट में. 1 मिनट में मतलब इन्हें ज्यादा फास्ट भी नहीं देना है, ज्यादा स्लो भी नहीं देना है कि आप सोचते बैठे माय आइडियल पर्सन इज, सोचना नहीं है, आपको normally बोलना है as you are speaking to. So you can start your self introduction. For example, good morning ladies and gentlemen, I'm Ansar Idrisi, I'm 25, I'm not married, I'm Indian, I'm from Pune. My father is a priest and my mother is a homemaker. I'm an engineer. My favorite color is cyan. My favorite sport is football. I'm interested in teaching and traveling. I love cooking and gardening. I loathe hypocrisy and racism. My best personality is Abraham Lincoln. My ideal is Prophet Muhammad, peace be upon him. I want to become a great philanthropist. Thank you. मैंने आपके सामने मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया हूं और मुझे लगता है शायद 30 सेकंड्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है. शॉर्ट एंड स्वीट, जितना आपके पास में है. अगर आपके पास में कोई फेवरेट ऑथर नहीं है तो जबरदस्ती नहीं बोलना है. अगर आपके पास में कोई फेवरेट पोएट नहीं है तो जबरदस्ती नहीं बोलना है आप लोगों को. ओके, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन माय सेल्फ इंट्रोडक्शन. प्लीज पे अटेंशन. आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से आप लोगों को सेल्फ इंट्रोडक्शन कोई भी कंपनी में, इंटरव्यू वगैरह में किस तरीके से बोलना है. ओके ओके, मैं स्लो बोलता हूं मैं. ओके, सो फर्स्ट विश करना है आप लोगों को अकॉर्डिंग टू द टाइम. टाइम के हिसाब से आप लोगों को विश करना है कि आप टाइम क्या हो रहा है तो उस हिसाब से आप लोग विश करेंगे. गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन. अब जैसे लेडीज और जेंटलमैन बहुत सारे लोग हैं बैठे हुए, तो आप बात कर रहे हैं. अब उसके अंदर एक और चीज मुझे याद आ रही है, मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं. आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कुछ लोग बोलते हैं जेंटलमैन, जो कि गलत है. बोलना चाहिए था हम लोगों को जेंटलमैन. साउंड को ड्रॉप करना है. जेंटलमैन, मैन का मतलब होता है लोग, आदमी जो होते हैं लोग, मर्द. सो जेंटलमैन. कुछ लोग बोलते हैं मेन. मेन का मतलब क्या होता है? मेन का मतलब होता है गधे का बाल, घोड़े का बाल. गधे के बदन पे जो बाल होते हैं उनको मेन बोलते हैं. घोड़े की पूंछ के जो बाल होते हैं, गर्दन पे जो बाल होते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे मेन. तो अल्टीमेटली अगर हम किसी को बोलेंगे गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मतलब यानी गुड मॉर्निंग औरतों और अच्छे गधे के बालों, पूरा मीनिंग उसका चेंज हो जाएगा. गुड मॉर्निंग औरतों और अच्छे घोड़े के बालों, तो बोलना चाहिए था जेंटलमैन और आपने कहा जेंटलमैन, पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा. तो जरा थोड़ा सा संभल कर बात करना है. ओके, गुड वन. सो हम लोग स्टार्ट करेंगे. गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम अंसार इदरीसी, आई एम 25, आई एम नॉट मैरिड, आई एम इंडियन, आई एम फ्रॉम पुणे. माय फादर इज अ प्रीस्ट एंड माय मदर इज अ होम मेकर. आई एम अ टीचर. माय फेवरेट कलर इज cyan. My favorite sport is football. I'm interested in teaching and traveling. I love cooking and gardening. I loathe hypocrisy and racism. My best personality is Abraham Lincoln. My ideal is my father. I want to become a great philanthropist. Thank you. समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप लोगों को आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है. 16, 17 जो आप लोगों के टॉपिक्स, मतलब जो पॉइंट्स है, उनको आपको कलेक्ट करना है. इस तरीके से आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन फिनिश हो जाएगा. गेटिंग इट? मैं एक और बार रिपीट कर रहा हूं, आप लोगों को सिर्फ ध्यान देना है कि किस तरीके से आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन आएगा. ओके, और मुझे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप लोगों के पास से आपका खुद का सेल्फ इंट्रोडक्शन चाहिए. ठीक है, जो आप लोग कहीं पर जाकर बोलेंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन, तो लोगों ने बोलना चाहिए हाँ भाई सामने वाला कुछ तो अच्छा बोल रहा है. ओके, वंस अगेन, गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम अंसार इदरीसी, आई एम 25, आई एम नॉट मैरिड, I'm Indian, I'm from Pune. My father is a priest and my mother is a homemaker. I'm an engineer. My favorite color is cyan. My favorite sport is football. I'm interested in teaching and traveling. I love cooking and gardening. I loathe hypocrisy and racism. My best personality is Abraham Lincoln. My ideal is my father. I want to become a great philanthropist. Thank you. ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है, जो कि इंशाल्लाह काफी बेस्ट रहेगा whenever you are going anywhere to introduce yourself. Okay, thank you so much and good comments from the students. I hope आप लोगों को समझ में आया होगा ये. If you have any questions, any doubts, you can ask me. Okay. Okay. Any doubts to anyone? किसी को कुछ पूछना है? एनी डाउट्स? इसकी पीडीएफ वगैरह मैं आपके साथ में इंशाल्लाह आगे कुछ लेक्चर्स होंगे, मैं आपके साथ में शेयर करता रहूंगा इसकी पीडीएफ वगैरह. ओके,
आज आप लोगों को एंजॉय किया होगा आप लोगों ने थोड़ा बहुत लेक्चर, और आप लोगों को काफी सारी चीजें समझ में भी आई होंगी, और आप लोगों को आज हमने से पूरा सेल्फ इंट्रोडक्शन फिनिश किया है। यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि सेल्फ इंट्रोडक्शन असल तरीके में किस तरह से देना है। अब तक हम लोग क्या करते थे सेल्फ इंट्रोडक्शन में, सिर्फ अपना नाम अपना काम बोलते थे और फिनिश कर देते थे। बट अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन एकदम एप्रोप्रिएट मैनर के अंदर अच्छे से देना है। गेटिंग इट? With your best things and regards, inshallah we'll be seeing you tomorrow once again. If you have any questions you can ask me anytime. All right, so keep on practicing at home. सबसे पहली चीज ये है कि आप मेरे साथ में होते हैं सिर्फ 1 घंटा, बाकी के जो 23 आवर्स होते हैं दिन के 22 के, बाकी के जो 23 घंटे होते हैं आप आपकी नॉर्मल लैंग्वेज के साथ में होते हैं, बराबर। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इन चीज को ज्यादा से ज्यादा रिपीट कीजिए। जितना आप माहौल में रहेंगे इंशाल्लाह यू विल बी स्पीकिंग अमेजिंग। ओके, so for that you need to practice at home. You need to practice at home, and if you have any questions, any doubts, you can ask me anytime. All right, we'll see you tomorrow on time. Till that, assalamu alaikum. Just wait a minute, okay? Just wait a minute, let the madam talk. इसको बंद कर दे जी। आपकी स्क्रीन पीछे की तरफ ये कर दो, नहीं वो सेव करनी पड़ेगी ना। नहीं, वो ऑटोमेटिक सेव होती है। चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से कमेंट भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को या आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए। लेकिन कुछ बातें जो हैं जो आपसे जिक्र करना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे के लेक्चर्स सही चलें। क्योंकि अपना अभी तकरीबन 900 का क्राउड हो चुका है, तो इसके लिए कोई प्लेटफॉर्म अभी जो टू वे इंटरेक्शन में हो अभी तक हमें थोड़ा करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो हमने ये लाइव का प्लेटफॉर्म यूज़ किया है, हमने यूट्यूब पे लाइव ये यूज़ करके आपको लेक्चर डिलीवर करने की कोशिश की है। लेकिन कुछ बातें जो है ज़रूरी है जो आपसे शेयर करनी है, आपको बतानी है। इसमें से सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे चैट करने के लिए आप अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, स्माइली फेसेस, ये सब कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। जितना सर आपको बता रहे हैं, जो चीज़ आपको सर बोल रहे हैं कि आपको चैट में लिखना है, उतना ही आपको लिखना है। आप इसके अलावा कोई भी गैर ज़रूरी कमेंट्स यहाँ पे नहीं करेंगे। लिहाजा आपको अगर ऐसा कोई गैर ज़रूरी कमेंट पास करने वाला मिले, उसको यहाँ से रिमूव किया जाएगा ग्रुप में से। कुछ बातें ऐसी है जैसे सैफुल्लाह खालिद, गैर ज़रूरी कमेंट, कोई पॉलिटिकल कमेंट इस पे नहीं करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है, आपके सारे चैट बॉक्स हमारे पास में रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो आप लोग कोई भी गैर ज़रूरी कमेंट या किसी को हंसी मजाक वाली कमेंट यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कल के भी इसमें हमने देखा है कि पर्सनल चैटिंग कोई करेगा नहीं, कि आपस में आप बात करें, आप अपने तौर से अपने पर्सनल इस पे बात कीजिए, आप कैसे हो, ये कैसे हो, ये प्लेटफॉर्म नहीं है ये सब चीजें शेयर करने के लिए, ठीक है। कोई स्माइली फेसेस कोई और कुछ बना के नहीं भेजेंगे यहाँ पे, और यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग इसका कोशिश करेंगे कि इससे फायदा हासिल करें। अब रही सवाल दो टेक्निकल बातें जो आपसे बतानी है, काफी लोग लिख रहे सर साफ नजर नहीं आ रहा है, सर आपकी ये नहीं हो रही है, बहुत स्पीड मतलब हो रही है बातें। आपको एक काम करना है, आपका वीडियो आपके चैनल पे तो अपलोडेड है, आप बार बार इसको सुन सकते हैं। ये वीडियो के राइट साइड में ऊपर की तरफ में 3 नुक्ते 3 डॉट्स है, आप वो डॉट्स पे क्लिक करना, उसके अंदर से आपको अपने फोन की पिक्चर क्वालिटी बढ़ाना है, ना कि आपके सर की यहाँ से स्क्रीन हमको आपको क्लियर करवानी है। स्क्रीन तो पूरी क्लियर है, आपको आपके 3 डॉट में आपको वहां पे क्लिक करना है, उसमें से आपके पिक्चर क्वालिटी आपको सही करनी है, ठीक है। उसमें बढ़ानी है, जो भी पिक्चर क्वालिटी आपने चूज कर रखी है बाय डिफॉल्ट है, उसको आपको अगले हायर क्वालिटी लेना है, पिक्चर क्वालिटी, तो आपकी स्क्रीन साफ नजर आएगी, ठीक है। दूसरा सवाल है कि आपको स्पीड में बहुत बोल रहे हैं सर, थोड़ा आराम से बात कीजिए, इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। तो उसके लिए भी आप जब दोबारा इसको सुनने की कोशिश करेंगे, दोबारा आप इसको सुनेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो सेम चीज वही 3 डॉट पे आपको जाना है और वहां से उसकी प्लेबैक स्पीड है वो कम करनी है आपको। प्लेबैक स्पीड आप जब कम करोगे तो ये वीडियो स्लो इसमें आपके पास आएगा और आप आराम से उसको समझ सकोगे,
ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अपने लेवल पे सेट करनी है कि ना कि यहाँ पे बार बार आप कमेंट कर रहे हो, ताकि क्या हो रहा है, जो जरूरी बात है, जो जरूरी बात सर कहना चाह रहे हैं या पढ़ना चाह रहे हैं, वो पढ़ नहीं पा रहे, स्क्रीन शेयर स्क्रॉल हो जाती है, ऊपर की तरफ चली जाती है। तो इसलिए हमें इस चीजों से बचना है, ताकि इसको हम अच्छे से अच्छा फायदा हासिल करें और यहाँ से जो मकसद है हमारा सीखने का, वही बरकरार रहे इसमें। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर।